So in the last class, we were already started a lecture related to shear strength. The some of the parts already covered that we seen in the last lectures. So let just brief that. We seen the Mohr circle, how to draw the Mohr circle, some conditions for the plane stresses. So we study about how the stresses are produced, what is the shear strength, how it's going to be calculated by using Mohr envelope. These are the things we already calculated. So, what are the reason behind the strength of the soil is provided by? There were three reasons we already studied about. One is interlocking, friction, and sliding. These are the three component we already see. So, why the strength of the soil is provided by? So these are the things we already covered. Then we studied about the Mohr circle, how to draw journal Mohr circle, how to draw, which we already seen in strength of material in third semester. Then we draw plot some values and get the value of Mohr circle, principal stresses, shear stresses. So these are the things we already covered. So I'm not going to brief all again and again. Let's go to the topic that we discussed in today's lecture. So Mohr failure and Mohr criteria. Up to this point, we already discussed, I think, है ना? So this point we already discussed how we get the maximum value of shear stress, that is tau max, which is nothing but difference of the principal stresses, average of difference of principal stresses, and it is going to be occur at the angle of 45 degree with the major principal plane, and normal stresses on this plane when the shear stress is maximum. When the shear stress are maximum, normal stresses will not be equal to zero. Their value will be the average of the stresses those we applied on the real on the that molecule or that solid particle of the soil. So next part is Mohr criteria and the Mohr failure hypothesis. So what do you mean by that? That we will see then how to draw the Mohr circle. What is gives the idea about Mohr and Coulomb's theories also we will see in this. So Mohr failure criteria and Mohr failure hypothesis. Hypothesis means basically the assumption that is used by the Mohr to give the value of shear strength to get how to calculate the shear strength. So let's see what the Mohr failure criteria and what is the Mohr hypothesis. According to the hypothesis or assumption, the material specifically more basically gives the idea about the material. It can be a solid material, it could be a your soil material or soil particles. Material fail when the shear stress on the failure plane, the shear stress at a failure plane over which the soil has been going to be fail or any material is going to be fail on this plane कब फेल होगा the shear stress on the failure plane at failure reaches a value which a unique function of normal stress on the failure plane. तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली ये टाइम से ज्वाइन क्यों होगा so what does it actually mean the shear stress at a failure ये जैसा कि जेड टाउ एफ एफ लिखा हुआ है shear stress on a failure plane at failure मतलब फेलियर के टाइम फेलियर प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेसेस है जो shear stress प्रोड्यूस होंगी उनका यूनिक फंक्शन है किसके साथ फेलियर के टाइम फेलियर प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस के साथ इसका मतलब मैं फिर से बता देता हूँ बट द मोहर फेलियर क्राइटेरिया और हाइपोथेसिस और assumption जो बताई थी कि जो shear stress के साथ फेलियर के टाइम फेलियर प्लेन के ऊपर at the time of failure on the failure plane there is a unique relation will come out that is with the normal stress on a failure plane at the time of failure एफ का मतलब है फेलियर प्लेन एट फेलियर ये म्यूट कर लो बच्चे जिसका ऑडियो ऑन है प्लीज म्यूट योरसेल्फ किसका आवाज आ रहा है So, what the Mohr theory or hypothesis is, shear stress at failure plane at the time of failure will be the unique function of normal stress at the time of failure at the failure plane. ये बच्चे कौन बार बार अनम्यूट कर रहा है अपने आप को
So tau ff is shear stress on failure plane at failure. Sigma ff, the joint time, normal stress on failure plane at failure. So there is a unique relation which is told by the Mohr. There is a unique relation comes out, that is shear stress at failure plane at failure time of failure will be equal to the normal stress equal to the equal function of normal stress at failure plane at the time of failure. So basically, this is line curve, or this is a mathematically or graphically we can say there the shear stress जो कि function है हमारे normal stress का at the time of failure at the failure plane, which comes out to be, अगर मैं कोई भी point यहाँ पे consider करता हूँ, suppose any point I consider, this horizontal axis shows the normal stress, y axis shows the shear stress. तो पहले एफ को देखते हैं. द नोट द फर्स्ट एफ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट फेलियर प्लेन. पहला है जो ये बता रहा है फेलियर प्लेन, और सेकंड एफ बता रहा है रिप्रेजेंट एट फेलियर, मतलब शियर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलियर. Here sigma 1 and sigma 3 are the principal stresses we already studied about. There were three stresses are going to be produced. One, so what are the three principal stresses? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 1 is maximum principal stress, sigma 2 is the intermediate principal stress, sigma 3 is minor principal stress. Sigma 2 we already ignore. Fine, according to the assumption that we used in the Mohr in the last class that we have already seen. Suppose there is a body or any material part, we apply the stresses over which, that is a sigma 1 is a measure principal stress at the time of failure, sigma 3 3f, sigma 1f, sigma 3. So these are the things that we are, this is the plane we consider which makes an angle alpha with the horizontal plane. Fine. So there are stresses going to be produced on this plane after applying these forces or these stresses over the that molecule, which comes out to be sigma f, which is the normal stress on failure plane at the time of failure. Tau is a shear stress at the failure plane at the time of failure. These are the stresses which are going to be produced at any angle alpha with the horizontal when they are a system of stressed material. Like you can see, they are the compressive stresses are going to be active. तो जो रिलेशन हमने मैथमेटिकली लास्ट स्लाइड में मैंने अभी बताया, वो उसको हमने एक कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया, विच इज स्लाइटली कर्व, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. Specifically, this function represents the shear stress which is at a failure plane at the time of failure, which is a unique function with the normal stress at of failure plane at the time of failure. This is the relation comes out here, which is representing the form of graphical. तो ये चीज़ तो ये बेसिक फंडा यहाँ पे चलती है. अब इसके बारे में जो चीज़ें अभी लिखी थी, जो भी मैं बता रहा था, दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन हियर. इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल stresses, that is sigma 1 and sigma 3 are 3f basically, one sigma 1f और sigma 2f, मतलब फेलियर के टाइम आर नोन. बेसिकली कैसे पता चलता है ये स्ट्रेसेस, हमें ऐसे डायरेक्टली ही नहीं पता होगा. दैट वी नीड टू कैलकुलेट बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट ओवर द सोइल सैंपल. यू हैव टू टेक द सोइल सैंपल, यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट, you will calculate the principal stresses, and then after getting the value of principal stresses, you have to apply over the that theoretical concept on that, and you will get the value of failure plane where it going to be happen in the soil. फाइन. पहले सारी सोइल के ऊपर टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगी. मतलब ये वैल्यू हमें नहीं पता कि आपने कितनी लगा रही. आपने एक्सटर्नली विद परफॉर्मिंग द टेस्ट you are going to apply the stress on the material. Due to that material, these are the principal stresses you will calculate. After getting the value of principal stresses, take any angle alpha and calculate the different plane पे आपको stresses निकालनी पड़ेंगी, किसी अल्फा पे फिर किसी और एंगल पे. तो जिसके ऊपर ये यूनिक फंक्शन निकल के आएगा, दैट एंगल दैट इज बेसिकली द पॉइंट वेयर द वी गेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन. इसमें बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए मैं इस चैप्टर को स्पेसिफिकली शियर स्ट्रेंथ को हम एक लेक्चर और मैं लेके चलूँगा. तो टेस्ट अगली क्लास में देखेंगे. आज के लिए फिर से थ्योरी कंटिन्यू चल रही है. तो determine from the test, Mohr circle corresponding can be drawn. After getting the principal stresses, हमें पता लग गया प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट, एंड देन वी ड्रॉ द मोहर सर्कल. मोहर सर्कल हमें क्या बताएगा? वो बताएगा स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस.
मोहर सर्कल हमें ये बताता है स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा 1 एफ क्या है, सिग्मा 3 एफ क्या है, ये वैल्यूज हमें मिलेंगे एंड देन वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ टू ड्रॉ द मोहर सर्कल एंड further we will do the calculation that we require. If the data from several tests carried out on different samples up to failure available, अब हमें ये डाटा चाहिए मोहर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, यस डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड सम डाटा फॉर डिफरेंट सैंपल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक सोइल सैंपल है, सपोज करो पूरा आपने एक ही जगह से सोइल का स्पेसिमेन उठाया और उस पर टेस्ट अलग परफॉर्म किए, कुछ अलग, एक सैंपल लिया दूसरा लिया, मतलब सेम सोइल फॉर डिफरेंट सैंपल्स, तो उनकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी स्ट्रेसेस की आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से लिया और उसी सैंपल को, बिकॉज आप हर बार जो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से जो मोर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है दे विल कम्स आउट टू बी डिफरेंट, और वो आपका तरीका भी चेंज हो रहा है, मतलब टेस्ट आप कौन सा कर रहे हो, हर एक मटेरियल के ऊपर टेस्ट भी अगर चेंज कर रहे हो तो स्ट्रेसेस विल बी चेंज ओवर देयर। इफ द डाटा फ्रॉम सेवरल टेस्ट कैरिड आउट ऑन डिफरेंट सैंपल, फिर से यार क्या बच्चे, बाद में मैं जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन यू कैन आस्क अंटिल, आप अपने आप को म्यूट ही रखिए। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज रेज योर हैंड सो आई विल आस्क दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, अदरवाइज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। So if the data from several tests carried out on different sample up to failure is available, series of Mohr circle can be drawn। तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, हर एक टेस्ट के लिए सिग्मा 1 मिलेगा, सिग्मा 3 मिलेगा, पहला मोर सर्कल बना लिया, फिर दूसरे टेस्ट परफॉर्म किया, सिग्मा 1 मिला, सिग्मा 3 मिला, फिर तीसरा किया एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ टेस्ट करोगे उतने नंबर ऑफ मोर सर्कल आप उसके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द डाटा विच वी गेट फ्रॉम द टेस्ट। इट इज़ कन्वीनियंट टू शो दीज मोहर सर्कल इन टर्म्स ऑफ देयर अपर हाफ। तो थोड़ा इजी रहता है कि पूरा मोहर सर्कल ना बना के हाफ मोहर सर्कल ड्रॉ कर लो, मतलब अल्टीमेटली वैल्यू रिमेन सेम आइदर ऑफ द साइड, किसी भी साइड बना लीजिए, तो अदर हाफ बनाते हो तो दैट विल बी इजी बेसिकली। A line tangential to these Mohr circle can now be drawn. After drawing the Mohr circle, you will draw a tangential line. This curve basically called Mohr failure envelope. अभी मैं दिखाता हूँ वो क्या होता है। This curve is called Mohr failure envelope. और वो क्या आएगा? The Mohr failure envelope express the function from relationship between tau ff and sigma ff। जो मोहर जो एनवेलप बनेगा, फेलियर एनवेलप बनेगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, मतलब सोयल स्पेसिमेन के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोबिलाइज होना मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब आएगी उसका मतलब है वो पॉइंट क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी उस स्पेसिमेन की। तो दैट वी विल गेट द वैल्यू बाय ड्रॉइंग द मोहर सर्कल और मोहर फेलियर एनवेलप। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। मोहर फेलियर एनवेलप बेसिकली है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोहर सर्कल है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मोहर फेलियर एनवेलप एक्सप्रेस द फंक्शन टर्म्स दैट वी जस्ट सीन, देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन at the time of failure with the normal stress at failure plane at the time of failure। तो यूनिक रिलेशनशिप को हमें रिप्रेजेंट करेगा जो मोहर का एनवलप बनेगा आफ्टर ड्रॉइंग द मोहर सर्कल। by getting those values to draw the Mohr circle, we perform the number of tests over the soil specimen and get the value of sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 3 and so on। you draw at the number of tests you will perform, जितने ही नंबर आपके मोहर सर्कल बनते चले जाएंगे, और उसके टेंजेंशियल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके मोहर सर्कल के टेंजेंट क्रॉस करती हुई निकलेगी, और वो उस पॉइंट को और उस लाइन को हम बोल देते हैं मोहर फेलियर एनवेलप। लेट्स सी दैट वन। तो दिस इज द पॉइंट लाइन, this is the line which we are talking about। this line is basically called मोहर फेलियर एनवेलप, मोहर फेलियर एनवेलप। और ये फेलियर प्लेन ये कैसे निकालोगे? लास्ट टाइम हमने देखा क्या था, वी ऑलरेडी सीन दैट हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ पोल। पोल को पता है, पोल बताया था कैसे उसको निकालते हैं, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ पोल, दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। तो जो आपका प्लेन है, जिस प्लेन के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये सेक्शन कट करने के बाद जो आएगा उस पैरेलल लाइन के आपने ड्रॉ करनी है, और उस जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये एंगल क्या आएगा, अल्फा आएगा। यहाँ पे जो एंगल था सेंटर लाइन, सॉरी, यहाँ से जो सेंटर से, सेंटर की वैल्यू क्या आएगी, मोर सर्कल का सेंटर कैसे निकाल सकते हो, हाउ यू विल गेट द ओ वैल्यू?
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0 वो Yes, उसका सेंटर that is होगा। the center of the circle. अब after getting the value of center, you have to plot from the center to alpha. आपका एंगल बनेगा 2f अल्फा, जहाँ से ये लाइन जो कट करोगे, ये जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ये लाइन को अगर आप इनिशियली पॉइंट पोल के साथ मीट करवा देते हो तो ये मिलता है मुझे फेलियर प्लेन, ओवर विच द फेलियर इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस। तो ये लाइन था ना, ये इसके पैरेलल है ये लाइन। This is the plane of failure where I need to find out these two stresses, or there is a unique relation between comes out to a normal stress and shear stress on this plane. That is the value that we need to find by using the Mohr failure or Mohr circle angle. तो जो आपकी ये वैल्यू है, सपोज करो यू परफॉर्म 3 नंबर ऑफ टेस्ट ओवर द सैंपल एंड गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 F1, sigma 3 F2 sigma 1, सिमिलरली sigma 3 F1 sigma 3 F2 sigma, ये जो पॉइंट आपका पहला मोर सर्कल बन रहा है ये वाला है sigma 3 F1 sigma 1 F1, फिर ये दूसरा मोहर सर्कल sigma F2 एंड देन सिग्मा 1 F2। सिमिलरली थर्ड मोर सर्कल जो बन रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी सिग्मा 3 F3, और ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या आएगा सिग्मा 1 F3। तो इस तरीके से जितने आप टेस्ट परफॉर्म करते चले जाओगे उसके ऊपर आपको मोहर सर्कल के ऊपर मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये वैल्यू, इसी तरीके से इसका पॉइंट जो आएगा ये यहाँ पे मीट हो जाएगा इसी तरह। तो अलग अलग मोहर सर्कल के ऊपर अलग अलग वैल्यू जो टेस्ट परफॉर्म की है सिग्मा की वैल्यू आपके पास अलग अलग आ रही है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए फेलियर यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज along that plane will be different over the failure। ठीक है, अब वो प्लेन जो हमें फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये यूनिक रिलेशन निकल के आएगा, तो दैट इज द पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट जो मोहर सर्कल के ऊपर लोकेट हो रहा है, अगर मैं इन सारों पॉइंटों को मिला दूं तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को बोला जाता है मोहर फेलियर एंगल। क्लियर? तो ये चीज है मेरी मोहर सर्कल। अब मुझे ये बताइए कि मोहर फेलियर एनवेलप पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल, जो हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू सी एस एस जो मोबिलाइज होगी। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ड्रॉ करूं, वाई कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को? तो इस पॉइंट का क्या ऑर्डिनेट्स है? सिग्मा एफ एफ जेड टाउ एफ एफ ऑफ 3 है, अगर 3 थर्ड मोर सर्कल है तो इसका क्या होगा सिग्मा एफ एफ 2 टाउ एफ एफ 2। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा एफ एफ 1 टाउ एफ एफ 1। कहने का मतलब इस पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा एक्स और सिग्मा टाउ एक्स वाई होगा ना। तो वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई डायरेक्शन का कौन शेयर कर रहा है, और एक्स को कौन कर रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस कर रहा है या टाउ सिग्मा कर रहा है। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी टाउ की, वो मेरी क्या होगी? शियर स्ट्रेस होगी। और शियर स्ट्रेस इस पॉइंट के ऊपर ये मेरा फेलियर पॉइंट बन रहा है, इसको अगर मैं मिला दूं तो मुझे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉइल स्पेसिमेन। अगर इस पॉइंट से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ डाउनवर्ड साइड यहाँ पे, हाँ ये अभी मैक्सिमम शियर्स मोबिलाइज्ड नहीं है, ये शियर स्ट्रेंथ आ रहा है। अगर इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट गिव्स यू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे भी इसी तरीके से देखोगे तो मैक्सिमम तो 90 होगा ना, पर इसके परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो बेसिकली उसको अब आगे देखते हैं लेटर ऑन। तो ये आपकी दो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी तक आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या स्टोरी है इसके आगे। सो नेक्स्ट, अगर हम मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये मेरा मोर फेलियर एनवलप आता है, और इसमें फिक्स क्या है मुझे ये कोई बताएगा? विच वन इज द फिक्स वैल्यू? मोर सर्कल फिक्स बनेगा या एनवलप फेलियर एनवलप फिक्स रहेगा? बच्चे इसमें मोर फेलियर एनवलप हमें फिक्स रहेगा, क्योंकि ये इनर्ट प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड नहीं कर रही है कि एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या लग रही है। यहाँ से देखोगे मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चाहिए, सिग्मा 1 चाहिए, सिग्मा 3 चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, मतलब स्ट्रेसेस भी रिक्वायर्ड। और जो ये जो स्ट्रेसेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल स्ट्रेसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। यस और नो? कर रही है या नहीं कर रही है? जो आपकी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 वैल्यू है, बाय यूजिंग दोस वी हैव टू ड्रॉ द मोहर सर्कल। उनको यूज करते हुए मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। और
उसके हिसाब से अगर मोहर सर्कल को आप ड्रॉ करते हो तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जो आपने अप्लाई किए उन पे डिपेंड कर रहा है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर। अब वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिपेंड कर रही है, मतलब मोहर सर्कल से पहले आपको पता है कि मोहर फेलियर एनवेलप कहाँ होगा, जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोबिलाइज्ड होगी, वो पॉइंट जो मिलेगा वो मुझे देता है मोहर फेलियर एनवेलप। मतलब मैक्सिमम शियर मोबिलाइज्ड होना सोयल के अंदर, विच इज नथिंग बट योर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल। यही होती है स्ट्रेंथ और स्ट्रेस के अंदर रिलेशन, पता है ना। स्ट्रेस तो किसी भी पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, किसी भी एंगल के ऊपर, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने लोड अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेन हैज बीन देयर, उस स्ट्रेन के अगेंस्ट देयर इज अ स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस, तो उसको हम नहीं कह सकते कि दैट इज अ स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ क्या होगी, जिस टाइम पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोबिलाइज हो जाएगी स्पेसिमन के अंदर या सोयल पार्टिकल के अंदर, जो कि हमारा किसी भी प्लेन के ऊपर फेलियर विल टेक प्लेस व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल मोबिलाइज इनटू द सोयल। ठीक है, ये चीज़ें हमने क्लास में लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया, दो स्पेसिमेन थे आपके पास, वन यू गेट द वैल्यू, दिस इज द मोर फेलियर एनवेलप, जो कि इस पॉइंट के ऊपर आता है आपका फेलियर विल टेक प्लेस। बट आपकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मोहर एनवेलप बन रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डज इट बोथ द मोहर सर्कल रिप्रेजेंट टू यू? किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? अभी तक दो ऑलमोस्ट सेकंड लेक्चर वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय दीज टू मोर सर्कल, व्हाट दे आर गिविंग आइडिया अबाउट मोर फेलियर एनवेलप? हमें पता लगा, चलो मैं अभी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक चीज हमें पता है कि सी एस एस है वो सी एस एन से ज़्यादा हो सकती है किसी भी सोयल स्पेसिमेन के अंदर। कोई ऐसा प्रैक्टिकल कंडीशन पॉसिबल है क्या सी एस एस सी एस एन से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? No, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो मोबिलाइज होगी दैट इज योर शियर स्ट्रेंथ, तो शियर स्ट्रेंथ नेवर गेट मोर देन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द, अगर उससे ज्यादा होने का मतलब है कि फेलियर ही हो जाएगा ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ हमारी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ज्यादा स्ट्रेस आने का मतलब ही नहीं है इन दैट केस। ये पहला जो मोहर सर्कल, ये जो सेकंड मोहर सर्कल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रैक्टिकली। इस मोहर सर्कल में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दैट विल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम सीएसएस। सीएसएस क्या होता है, वाई अच्छी है ना, वाई ऑर्डिनेट है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये मेरा पोल पॉइंट है, दिस इज द पोल। अब ये कहीं मीट करेगा एंगल अल्फा के ऊपर, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैक्सिमम सीएसएस क्या निकल के आ रहा है, मेरे फेलियर एनवेलप से ज्यादा आ रहा है। और फेलियर एनवेलप, बच्चे म्यूट कर लो, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लीजिएगा। खुद पास में होते नहीं है, म्यूट चला के छोड़ के चले जाते हैं। तो बेसिकली दिस लाइन रिप्रेजेंट द मोहर फेलियर एनवेलप, का मतलब है कि स्ट्रेंथ बता रहा है। ये लाइन जो हमें पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ पॉइंट बता रहा है कि इसमें सीएसएस उतनी होगी है कि इस पे यूनिक रिलेशन। ये देखो ना, यहाँ पे ध्यान से बच्चे देखो, ये पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, इन दोनों का यूनिक रिलेशन बता रहे हैं, इन दोनों का यूनिक रिलेशन बता रहे हैं, इन दोनों का यूनिक रिलेशन। और ये यूनिक रिलेशन कब होगा, जब फेलियर होगा। तो फेलियर होने का मतलब क्या है कि जो शीयर स्ट्रेंथ है, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर मेरा यूनिक, तो ये तो मोर सर्कल वैसे ही ज्यादा मरना है, मतलब शीयर स्ट्रेस है दैट इज मोर देन द शीयर स्ट्रेंथ, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रैक्टिकल। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे किसी भी केस में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है पूरे उस सोयल पार्टिकल के ऊपर, अलग अलग एंगल के ऊपर अगर हम बनाए, किसी भी पार्टिकल के अंदर जो सोयल है वो कोई भी कहीं भी फेल नहीं हो रही है। तो इस सोइल को या इस मोहर सर्कल हम कह सकते हैं स्टेबल सोइल और स्टेबल मोहर सर्कल, जिसमें फेलियर एनवेलप से स्ट्रेसेस है वो कम रह जा रही है, मतलब फेलियर विल नॉट टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर। तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा, वन विच इज शोइंग कि शियर स्ट्रेंथ आपकी सी एस एस से ज़्यादा है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हेयर इफ यू सी सी एस एस इज आर मच लेस देन द शियर स्ट्रेंथ विच इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टेबल सोइल। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखते हैं। इट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द मोहर एनवलप एंड मोहर स्ट्रेस सर्कल इफ स्ट्रेस कंडीशन एट ए गिवन पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाय मोहर सर्कल।
जो स्ट्रेस स्टेट में बताया, स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, मोहर सर्कल से रिप्रेजेंट की जा रही है। लाई बिलो द मोहर फेलियर एनवलप, जो कि पहला पॉइंट है ये वाला, लाई बिलो द मोहर फेलियर एनवलप, every plane passing through this point has a shear stress which is smaller the shear strength of the soil। अभी मैंने यही बताया था ना आपको कि जो प्लेन, उसके अंदर कितने भी प्लेन आप ड्रॉ कर लो किसी भी एंगल अल्फा के ऊपर, जो shear स्ट्रेस आपको देंगे वो कम होंगी किससे, shear स्ट्रेंथ से। और फेलियर एनवलप हमें बताता है का shear स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, तो वो एक तरीके से परमानेंट चीज है, हमें पता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ ये है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट ए स्टेबल कंडीशन, तो ये कंडीशन जो आएगी इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। ऑन द अदर हैंड सर्कल लाइंग अबव द मोहर फेलियर एनवलप, जैसा कि इसमें देख सकते हो दिस इज द मोहर फेलियर एनवलप, और जो सर्कल आपका मोहर सर्कल है विच इज लाइज अबव द मोहर फेलियर एनवलप एक्सीड द शियर स्ट्रेंथ हेंस इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या कर रहा है, एनवलप एक्सीड द शियर स्ट्रेंथ, तो शियर स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अगर किसी यूनिक पॉइंट के ऊपर हम रिलेशन की बात करें तो ये दो पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं शियर स्ट्रेंथ, तो हमारा एक्चुअली शियर स्ट्रेंथ क्या निकल के आ रही है, दे आर मच मोर देन द शियर स्ट्रेंथ विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। Any Mohr circle whose tangent is Mohr failure envelope represent a condition wherein the point of tangency gives the stress condition on the failure at a planar failure। अब क्या कहने का मतलब है, टेंजेंट पॉइंट है मोहर सर्कल के ऊपर, जो टेंडेंसी है वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है, वो स्ट्रेस रिप्रेजेंट करती है विद इज यूनिक रिलेशनशिप द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए फेलियर प्लेन। द ओरिएंटेशन ऑफ फेलियर प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय पोल मेथड। जो ओरिएंटेशन हमने कल भी देखा, पीछे क्लास में जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी कि अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर अगर कैलकुलेट करना है तो हाउ यू विल लोकेट द पोल, दैट वी ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर। इट कैन बी सीन दैट ऑन फेलियर प्लेन द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेंथ। ये क्या कहने की है, इट कैन बी सीन दैट फेलियर प्लेन द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेंथ, जो फेलियर प्लेन के ऊपर जो शियर स्ट्रेसेज है वो शियर स्ट्रेंथ के इक्वल होगी, जो हमें पता है कि सारी की सारी स्ट्रेसेज है वो मोबिलाइज्ड हो जाएगी उस सॉइल स्पेसिमेन के अंदर। मोहर फेलियर हाइपोथेसिस थस आइडेंटिफाइज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो टेंजेंट पॉइंट है मोहर एनवलप टू द मोहर सर्कल एट फेलियर इज मेथड ऑफ डिटरमाइन द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन। जो हमें ये क्या बताता है, किसी भी फेलियर के ऊपर कितना इंक्लिनेशन है ये हमें बता देगा। इस पॉइंट से अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूं तो ये प्लेन मुझे क्या मिलेगा, अल्फा के ऊपर कितना इंक्लिनेशन है, ये मेरा पॉइंट क्या है, ये फेलियर प्लेन है ना। तो ये मोहर सर्कल और मोहर एनवलप हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि फेलियर प्लेन क्या है और कितने एंगल के ऊपर इंक्लिनेशन है विद द हॉरिजॉन्टल। यस और नो, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो ये हमें ये बता देते हैं क्या, कि कोई भी फेलियर प्लेन है विद द हॉरिजॉन्टल एट विच एंगल दे आर इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमें मोहर फेलियर और मोहर सर्कल हमें ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो किससे रिप्रेजेंट करती है, मोहर सर्कल से। फेलियर मतलब हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। और जो पोल लोकेट करने के बाद अगर हम अल्फा एंगल के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस लाइन इज बेसिकली रिप्रेजेंट फेलियर प्लेन, ठीक है। नोट, इट शुड बी रेफर्ड द मोहर एनवलप इज यूनिक फॉर ए गिवन मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होता है, सोइल के लिए अलग है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ड्यूरिंग द लोडिंग। ये डिपेंड नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया ये इनर्ट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनर्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस इज नॉट द इनर्ट प्रॉपर्टी। Material during the loading, while more stress circle is directly related to the stresses imposed by the loading of the material and is unrelated to the material strength। तो related to strength से कोई मतलब नहीं है। जो मोहर सर्कल है वो क्या बता रहा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 बेसिकली हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, जो कि रिलेट कर रही है कि आपने लोड किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, आप टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हो, उनके बेस के ऊपर वो स्ट्रेसेस निकलेंगी एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द मोहर सर्कल। बट जो मोहर एनवलप है दैट विल duplicate the strength of the material which is basically the inert property of the soil। clear? सो नेक्स्ट आपके पास निकल के आते हैं ये चीज़ जो जो अभी मैंने बताई, उसी चीज़ को आगे फर्दर कुलम्स ने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल व्यूज है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो दिए हुए। कोलम्स इक्वेशन क्या है आपके पास, कोलम्स
on the basis of number of experiment, he observed some values, he performed some test over the soil and gets reached to some conclusion and provides some mathematical relation with the shear strength and cohesion and all the things. Coulombs, on the basis of number of experiments, observed the shear strength of a soil has two components. दो component होंगे, कौन कौन से that we are going to see here. One of the component of shear stress called intrinsic cohesive or apparent cohesion. ठीक है, apparent cohesion जो कि है first a component है is constant for a given soil and is independent for the applied stresses. जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, म्यू के साथ हमने रिलेशन देखा था कि यस और नो, सीएसएस का हमने म्यू के साथ रिलेशन देखा था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो कोहेजन के साथ रिलेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर ए गिवन सोइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेसेस, जो कि डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेसेस क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. दैट डिपेंड अपॉन द गिवन सोइल के लिए कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, कि वो सैंडी सोइल है, क्लेई सोइल है, उसके ऊपर. ठीक है. The other component of termed as friction resistance. Smaller the that of friction in solids varies directly as magnitude of normal stresses on the plane of rupture or failure. और ये हमारा डायरेक्टली रिलेट करेगा नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ. और कूलम्स ने शियर स्ट्रेस के साथ एक रिलेशन दिया था. दैट रिलेशन इज कम्स आउट टू बी टाउ एफ शियर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन और फेलियर के टाइम, C plus C is the cohesion plus sigma, that is a normal stress, tan phi. Phi is the angle of obliquity or sorry angle of ये आपका resistance, friction resistance. So graphically we can represent it. C is the vertical component cohesion which is provided at, which is going to be this line is represented the equation of y, which is mx plus c, which we just seen. Coulomb equation with the horizontal, this angle is phi. अब phi 0 होगा तो इट मीन्स दिस लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. 0 कब होगा भी, सॉरी C 0 कब होगा, व्हेन द कोहेजनलेस सोइल इज देयर. कोहेजनलेस मतलब सैंडी सोइल अगर हुआ इन दैट केस. और phi 0 कब होगा, मतलब मैक्सिमम इंक्लिनिटी कब निकल के आएगी, ये लाइन स्ट्रेट कब हो सकती है, मतलब ये एंगल आपका कब निकल के आएगा, फ्रिक्शन 0 मतलब क्लेई सोइल होगा तब. ये आगे देखेंगे हम लेटर ऑन. ठीक है. टाउ एफ इज shear strength of soil. टाउ एफ इज अ shear strength of the soil. जो अल्टीमेट गोल हमारा सारी थ्योरी को पढ़ने का है, जो टॉपिक का नाम ही था ना shear strength, तो वही चलता चला जाएगा. shear strength ही हमें निकालना. C is the apparent cohesion. सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ रप्चर और फेलियर. फेलियर प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो रही है उस की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा. फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और शियरिंग रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हमने एंगल लास्ट टाइम भी हमने क्लास में देखा. अब आगे देखते हैं. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखा है इक्वेशन ऑफ कॉलम्स, we can use that or analyze the shear strength components or parameter, that is cohesion C and phi. C represent y intercept, जो कि हमने देखा y intercept है, and phi is represent the slope of the line. इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये अभी आई थिंक एडिट नहीं होगा. C represent y intercept and phi is the represent the slope of the line basically. Fine. Note, it is to be noted that C and phi are not inert property of the soil. They are not the inert property of the soil, but they are related to the type of test. किस पे relate करेंगे, type of test पे, condition under which they are being measured. किस condition में measure किए जा रहे हैं, कौन सा test आप इन पे perform कर रहे हो, उनके ऊपर ये depend करेंगे. नोट, फॉर सर्टेन कंडीशन phi is equal to 0. अब किस कंडीशन में phi 0 होगा, देन इंटरनल फ्रिक्शन 0 होना, मतलब इन केस ऑफ क्लेई सोइल. प्योर कोहेसिव सोइल अगर हुआ उस केस के अंदर phi 0 होगा, तो हमारी जो शियर स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, बिकॉज वी नो द रिलेशन दैट इज सिग्मा, दैट इज C plus sigma 10 phi. That was the relation given by the Coulombs. Here you can see this is the C plus sigma 10 phi. If phi comes out to be 0, this value comes to be 0. C is equal to tau f.
जो ये वैल्यू निकल आएगी किसके लिए, फॉर सर्टेन कंडीशन व्हेन फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन बिकम जीरो, शेयर रेजिस्टेंस है वो जीरो निकल के आएगा। और शेयर रेजिस्टेंस किस केस में जीरो निकलेगा आएगा, व्हेन देयर इज ए प्योरली क्ले सॉइल। प्योर कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले सॉइल के अंदर आपके पास ये आ जाएगा फॉर सर्टेन कंडीशन C इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, कोहेसिव सॉइल कोहेजनलेस सॉइल होगी तब ये कंडीशन होगी। कोहेजनलेस सॉइल कौन सी होती है, क्ले सॉरी सैंड इज ए कोहेजनलेस सॉइल। तो C की वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और प्योर कोहेजनलेस सॉइल लाइक सैंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी टाउ एफ है वो जो निकल के आएगा, शियर स्ट्रेंथ विल कम्स आउट टू बी सिग्मा 10 इसमें बच्चे मैं सीधा बता देता हूँ, जो आगे आप अल्टीमेटली हर एक बच्चे ने सारों ने गवर्नमेंट के लिए तैयारी करनी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि C इज इक्वल टू जीरो विच टाइप ऑफ सॉइल इट इज। तो इसको आपने सीधा सीधा बताना है, इट्स सैंडी, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं सैंडी, क्लेई, ग्रेवल, सिल्ट, तो वो आपको चूज करना है बिकॉज विच सॉइल इज ए कोहेसिवलेस सॉइल। ठीक है, और ये रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शियर स्ट्रेंथ क्या होगी फॉर कोहेजनलेस सॉइल, 10 phi इज दिस वन, नॉर्मल स्ट्रेस इज दिस वन, कैलकुलेट दिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नाउ द कूलम इक्वेशन इज नाउ कंबाइंड विद मोहर फेलियर क्राइटेरिया। जो मोहर क्राइटेरिया हमने पढ़ा है उसको अब मर्ज करते हैं और लेट्स सी क्या कंक्लूजन निकल के आता है उसको देखते हैं। फॉर विच मोहर एनवलप इज अज्यूम टू बी स्ट्रेट लाइन ओवर ए पर्टिकुलर रेंज। वो वहाँ पे हम बात कर रहे थे वो कर्व लाइन थी, बट दोनों को मर्ज करके वो अज्यूम किया गया कि दे विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ओवर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एट द टाइम ऑफ फेलियर। Hence, Mohr-Coulomb failure criteria can be expressed as shear strength or shear stress at time of failure is equal to coefficient of cohesion or C plus sigma FF 10 phi. Sigma FF की वैल्यू हमने कहाँ यूज किया था, there was a relation, unique relation between the shear stress at a time of failure at the failure plane is unique function of normal stress at a failure plane on the time of failure. जो रिलेशन क्या था, टाउ एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सिग्मा एफ एफ दैट वी जस्ट सीन इन द लास्ट स्लाइड्स। तो अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स और मोहर को दोनों को मर्ज करने के बाद हमारे पास यूनिक रिलेशन जो निकल के आ रहा है दैट इज टाउ एफ विच इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एफ एफ 10 phi। ठीक है, ये रिलेशन हमारा पहले था और C plus 10 sigma 10 phi is given by the coulombs. Now merging it and we are conclude with this relation. Okay. Drawback of Mohr-Coulomb theory. The effect of intermediate stress sigma is ignored, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मोहर ने भी नहीं कंसिडर किया, ना इवन Coulomb ने थ्योरी में कंसिडर किया। इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेस सिग्मा 2 is ignored is irrespective of its magnitude which will have some influence on the strength of the soil। जो कि हमें पता है कि sigma 2 will also affect or influence the shear strength of the soil। मोहर फेलियर एनवलप इज assumed to be straight line, जो कि है नहीं। हमने देखा है कि मोहर की जो एनवलप बनेगा वो इन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बट इसके अंदर हमने assume क्या किया, वी assume that it is a straight line। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, तो 2 नंबर में इनसे पूछा जा सकता है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन रिलेटिव टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। एक चीज मैंने कल भी बताई थी, मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा, जहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगी, जीरो निकल के आएंगी। शियर स्ट्रेस जीरो निकल के आएगी, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। और जिस मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा, जिसपे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस विल एक्ट। यस और नो, मेजर प्रिंसिपल प्लेन को समझना है, प्रिंसिपल प्लेन जिसपे ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, और जो स्ट्रेसेस प्रिंसिपल प्लेन पे लगेंगे उसको बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और उन प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको बोला जाता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो जिस प्लेन पे लगेगी उस प्लेन को बोला जाता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। सिमिलरली सिग्मा 3 जो है वो हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और जिस प्लेन पे लगेगा उसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, जो एंगल हमारा बनेगा फेलियर का प्लेन रिलेटिव टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जो कि मोहर सर्कल में देखेंगे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ जो एंगल अल्फा बनेगा उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन रिलेटिव टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस। कि शीयरिंग रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट, हमें ये पता है एंगल अल्फा है जो फेलियर प्लेन के साथ बन रहा था, ये हमने अभी देखा कि नहीं देखा, दिस एंगल इज द, लेट मी शो यू अगेन, दिस इज द एंगल ऑफ अल्फा। इसकी वैल्यू क्या है वो हम देख रहे हैं, दैट इज
नथिंग बट 45 प्लस 5/2, मतलब जो shearing रेजिस्टेंस के एंगल को प्लस 45 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको अब ड्राइव भी करेंगे कैसे आता है। In terms of angle of shearing resistance, which is phi, either by using Mohr failure hypothesis or analytically, as you can see here, 2 alpha, the central angle with the shearing, the point where the f we are calculated in the Mohr circle। अगर आपको याद हो लास्ट पॉइंट के अंदर हमने f निकाला था, जहाँ पे रिजल्टेंट को हमने सेंटर के नॉर्मल स्ट्रेस के साथ निकाला था, एंगल ऑफ ऑब्लिगेटी फाई को कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, आई होप सो। 2 alpha is equal to 90 plus phi, alpha is equal to 90 plus pi by 2, which is nothing but alpha comes out to be 45 degree plus pi by 2। अब ये वैल्यू कहाँ से आती है इसको अब देखेंगे और कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। Analytically, it can be computed by using the fact that failure plane is one on which difference of shear stress and shear strength is the minimum। अब क्या कहने की मतलब है, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना और इसका क्या मीनिंग है उसको हमने आगे उसको एनालाइज करते हुए इसकी वैल्यू फाई की, अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी दिस। एनालिटिकली इट कैन बी कंप्यूटेड, हम कंप्यूट कर सकते हैं एनालिटिकली बाय यूजिंग फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है वो देखते हैं। द फेलियर प्लेन इज वन, फेलियर प्लेन जिस पे फेलियर होना है, ऑन विच द डिफरेंस ऑफ shear stress एंड shear strength इज मिनिमम। अब कहने का मतलब है फेलियर कब होगा, जब shear stress सारे के सारे मोबिलाइज होंगी, यस और नो, हाँ या ना, होगा ना। यस सर, यस सर, यस सर। shear stress और shear strength का डिफरेंस कम से कम होना मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल होंगी या दोनों का डिफरेंस है वो कम साउट, मतलब shear stress से सारी की सारी मोबिलाइज हो जाएगी, मीन्स दे आर एट द पॉइंट ऑफ shear strength, और shear strength पे रीच करते हैं हमारा फेलियर हो जाएगा। तो डिफरेंस इज कम्स आउट टू बी मिनिमम, ये हमें पता है फैक्चुअली। तो उस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं कि दे आर फेलियर प्लेन कब बनेगा, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों स्ट्रेसेस के अंदर shear stress और shear strength के अंदर जो डिफरेंस है वो कम्स आउट टू बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, कहने का मतलब है shear stress, all the shear stress will be mobilized into the soil specimen। According to Coulomb's, we already seen that shear stress at failure is equal to C plus, that is a cohesion, plus sigma 10 phi। सिग्मा हमने क्या देखा था, जब यूनिएक्सियल स्ट्रेसिस सिस्टम था हमारे पास, देयर इज नो shear stress acting on the plane, what was the relation with the normal stress, that is sigma 1, that is a major principal stress, plus sigma 3 minor principal stress by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 cos 2 अल्फा। अगर shear stress लग रहा था तब प्लस tau xy sin 2 अल्फा, that was the relation that we already studied। आपको आइडिया आई थिंक याद होगा, अगर ये सिंपल होता, अगर यूनिएक्सियल होता इन दैट केस सिग्मा 1/2 cos 2 अल्फा होता, बाई एक्सियल है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 cos 2 अल्फा। अगर shear stress भी लग रही होती तब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 cos 2 अल्फा प्लस tau xy sin 2 अल्फा, दैट वाज द रिलेशन दैट वी सी। ठीक है, और इस केस के अंदर shear stress जो निकल के आएगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2 sin 2 alpha। These are the relation that we already seen in the last class as well as in the strength of material। तो ये basically relation आपका सभी मोहर सर्कल के लिए, ये particularly not related to the soil itself, it's a relation of normal stress and shear stress at any angle alpha with the horizontal, जो कि किसी प्लेन के ऊपर अगर हम स्ट्रेसेस निकालें तो ये निकल के आती है एनालिटिकली। अब अगर जो रिलेशन ऊपर बताया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हम मिनिमम कर दें तो उसको अब अप्लाई करते हैं, ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। लेट्स सी, टाउ एफ विच इज नथिंग बट सी प्लस सिग्मा 10 फाई, वाज दैट रिलेशन, यस दिस इज द रिलेशन। तो सिग्मा की वैल्यू पुट करो, क्या निकल के आएगा, सी प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 cos 2 अल्फा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस रिलेशन, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस इक्वेशन, ये जो रिलेशन है इसके अंदर इसको पुट कर दिया है। और टाउ आपके पास क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन 2 अल्फा, ऑलरेडी हमें पता है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, द पॉइंट ऑफ फेलियर और प्लेन ऑफ फेलियर आपको निकल जाएगा, मतलब एंगल ऑफ ओब्लिक प्लेन का एंगल निकल जाएगा कि जिस पे हमारे ये यूनिक रिलेशन लगने वाला। तो टाउ हमें पता है दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 अल्फा। अब इन दोनों का यूनिक रिलेशन क्या कहा कि हमने जो फैक्ट हमें है कि दोनों का जो shear strength एट फेलियर और स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है
उसको रिलेट करते हैं. लेट्स सी C plus sigma 1 plus sigma 3 by 2 10 phi plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 cos 2 alpha 10 phi sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 alpha. Just put the all the values into the equation, multiply कर दिया अंदर की तरफ, तो ये सारा लिखा जाता है. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या मोस्ट डेंजरस प्लेन दैट इज द प्लेन ऑन विच फेलियर विल टेक्स प्लेस. तो सबसे हम मानते हैं कि जो प्लेन होगा जिसपे फेलियर टेक प्लेस होगा वही हमारे लिए डेंजरस है. उस प्लेन को ही तो निकालना है. will take place is the plane on which the difference of shear strength to the shear stress is minimum. इन दोनों का डिफरेंस कम से कम निकल के आएगा, वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो प्लेन ऑफ फेलियर मिलेगा. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. इसको फिर हम जीरो के इक्वेट कर देंगे. मिनिमम का मतलब जीरो ही है ऑब्वियसली. तो डी बाई डी अल्फा टाउ एफ माइनस टाउ विच इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 अल्फा. इसको जो लास्ट वैल्यू थी उसको आपका यहाँ पे क्या था, कोस था. ये दिस इज वैल्यू ऑफ कोस. कोस को डिफरेंशिएट कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी -2 साइन 2 अल्फा 10 फाइव. तो डिफरेंशिएशन करना सबको आता है. इट्स नॉट दैट बिग ह्यूज टास्क टू डू. माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा का आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कोस 2 अल्फा. ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, उसके बाद में फॉर मिनिमम वैल्यू ये दैट शुड बी इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली. तो डिफरेंशिएशन को हम अगर जीरो के इक्वेट कर दें तो दैट विल, और ये हमें पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 नेवर बी जीरो. ये दोनों जीरो नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस मेजर और माइनर कैन नॉट बी जीरो. जीरो होने का मतलब है वहाँ पे स्ट्रेसेस लग ही नहीं रही है. कंप्रेसिव, दोनों कंप्रेसिव नेचर के है तो दे आर नॉट गोइंग टू बी जीरो एनी हाउ. जीरो कहने का मतलब एक ही कंडीशन होगा जब आप इन दोनों को डिफरेंस, एक तो यूना अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होने चाहिए. इन दैट केस दिस थिंग कैन बी हैपन. तो ये तो सीधा हट जाता है हमारा. ये रिलेशन विल बी इक्वल टू जीरो. पुट दीज वैल्यूज इनटू इक्वल टू द जीरो एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व इट. साइन 2 अल्फा 10 फाइव प्लस कोस 2 अल्फा इक्वल टू जीरो. सिंप्लीफाई करते हैं. कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा 10 फाइव. साइन 2 अल्फा को इस साइड लाओ. कोट 2 अल्फा माइनस 10 फाइव. कोट 2 अल्फा को क्या लिख 10 फाइव को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 प्लस 5. तो यहाँ से 2 कोट से कोट कैंसिल. 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 5. अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5 बाई 2. दैट इज द रिलेशन विद द 5 और विद द अल्फा विद द 5. मीन शियरिंग रेजिस्टेंस का रिलेशन निकल के आ गया फेलियर प्लेन ऑफ एंगल के साथ. यस, आप चाहे यहाँ पे 10 को, इस कोट को 10 की फॉर्म में लिख लो या 10 को कोट की फॉर्म में लिख लो, दैट हार्डली मैटर्स. वो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई पर्सनल रूल रेगुलेशन नहीं है. दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यू कैन यूज आइदर ऑफ द वे. जिस भी तरीके से निकालोगे वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम आइदर ऑफ द वे. कोट को चेंज करिए चाहे 10 को करिए, दैट्स इज नो इशू. राइट, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी अल्फा की निकल के आ जाती है. बेसिक फंडामेंटल हमने यूज़ किया. एक फैक्ट था कि जो फेलियर एनवलप बनेगा कब, जब शियर स्ट्रेंथ और जो शियर स्ट्रेस का डिफरेंस आएगा दैट कम्स आउट टू बी मिनिमम. इट मींस दे शुड बी इक्वल टू जीरो. कम्स आउट टू बी देयर डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो. मिनिमम का मतलब यही है. अब उन दोनों के साथ हमारी इक्वेशन बनी थी. शियर स्ट्रेस हमें पता थी दैट इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 अल्फा. और शियर स्ट्रेंथ का रिलेशन हमने कुलम्स और कुलम्स इक्वेशन से हमें मिला था दैट इज नथिंग बट C प्लस सिग्मा 10 फाइव. सिग्मा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है यून बाई एक्सियल कंडीशन के अंदर विच वॉज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कोस 2 अल्फा. Put these value into that equation and differentiate because the minimum value we require. After differentiation, you will get the value of alpha is equal to 45 degree plus 5 by 2. I hope कि आपको चीज़ समझ आई होगी. फाइन, कोई ज़्यादा बिग चीज़ें नहीं थी इंक्लूडेड. जो द टर्म है मेनली ये चीज़ समझने वाली है. इसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है दैट इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज तो मैथमेटिकली चीज़ें जो आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है. ठीक है, तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. ये रिलेशन हमें आज ही क्लास में देखा और दिस रिलेशन वी ऑलरेडी नो बाय द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट. आल्सो वी नो दैट in the next previous class of soil mechanics we already seen. So just put the values and get the minimum value just we do the differentiate with respect to the alpha and so on. वो करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी. जिसके साथ अल्फा है वो उसका डिफरेंशिएट कर दो, बाकी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है,
तो ये वैल्यू यहाँ से अल्फा की निकल के हो जाती है। इसको हम मोहर सर्कल के बेस पे भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा इजी तरीका है, वो भी आगे देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखते हैं मोहर सर्कल का फंडा। तो Mohr Coulomb failure criteria can be expressed in terms of relationship between principal stress, that is sigma 1 at failure and sigma 3 at failure. Fine. अब मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं. दिस इज द योर shear stress angle at the y side. This is your sigma. Fine. So by knowing the value sigma 3 and sigma f, sigma 1 and sigma f, draw the Mohr circle. ड्रॉ किया. उसके बाद में हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर हमें पता है. सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? आइदर ऑफ द वे वी कैन कैलकुलेट दैट वी नो दैट सेंटर इज नथिंग बट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 कॉमा 0. फाइन, ये हमने निकाल लिया. अदरवाइज सिग्मा 3 और सिग्मा 1 की वैल्यू पता है तो भी हम स्केल बाय मेजरिंग भी निकाल सकते हैं. तो सेंटर की वैल्यू जनरली उस तरीके से हम निकालें. ठीक है. अब इससे आपने यहाँ पे एंगल ऑफ 2 अल्फा पे आपने एक लाइन ड्रॉ की. दिस इज गोइंग टू बी कट एट दिस सर्कल हेयर. और जो आपका लाइन इसको एक्सटेंड करते हुए ये हमारा क्या है, फाई एंगल है. इस लाइन के साथ एंगल को एक्सटेंड करते हुए दिस, और ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, दिस द पॉइंट ऑफ पोल. पोल से जिस पॉइंट को एफ पे मिलेगा, यहाँ से जो रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमारा होता है रिजल्टेंट. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस. और जो 90 एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, टाउ मैक्स, विच इज शियर स्ट्रेस एट मैक्सिमम. यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द टाउ मैक्स. ठीक है. और ये मेरा जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द लाइन ऑफ मोहर कूलम्ब्स एनवेलप. फाइन. और ये लाइन है वो फेलियर है. ये एंगल मेरा क्या है, 90 डिग्री है. ये मेरा अल्फा है. और कोड के साथ जो एंगल बनेगा वो ऑब्वियसली हाफ ऑफ दिस 2 अल्फा. सेंट्रल से जो एंगल बनता है वो 2 अल्फा होता है. जो दूसरी साइड बनेगा, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, दैट कम्स आउट टू बी अल्फा. इसको आप बीटा ले लीजिए या फाई लीजिए, दैट डजंट मैटर. ठीक है. ये एंगल यहाँ पे फाई है, तो अल्टीमेटली दिस विद द लाइन ओरिजेंटल के साथ जितना भी एंगल बनेगा वो फाई ही होगा थ्रू आउट दिस प्लेन. और ये आपका क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा, एफ का. तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो लाइन है अप टू G2 C F F, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर पॉइंट. और ये जो हमारी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, दैट इज योर टाउ एफ एफ, विच इज शियर स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एट द टाइम ऑफ फेलियर. ये मेरा फेलियर प्लेन है, उसका एंगल अल्फा है. और उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 45 प्लस 5/2, जो कि हमने इसको मैं अभी आगे सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो एंगल DBC एंगल मतलब एंगल DBC, दिस एंगल बेसिकली दिस एंगल ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल है ना जो वाइट वाली, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 45 डिग्री. ये एंगल जो 45 आएगा, ये आपका 90 है तो 45, दिस इज आल्सो 45. ठीक है. अभी आगे देखते हैं. सो इन ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट्स सी ट्रायंगल FGC एंड C. ये ट्रायंगल है जो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये ट्रायंगल जो दिस F, ये GC एंड GF. फाइन. ट्रायंगल FGC साइन फाई क्या होगा, साइन फाई क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. साइन फाई क्या, सुमित आपकी आवाज सही नहीं है. साइन फाई क्या होता है, कौन बताएगा सुमित के अलावा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. नेपाली स्टूडेंट्स कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है तो मुझे साइन फाई की वैल्यू बताओ भी क्या आ गई. मैं पीछे वाली स्लाइड नहीं दिखाऊंगा. लेट मी नो द साइन फाई वैल्यू. FC by GF. तो इसमें बेस कौन सा है, बेस दिस वन इज द बेस और दिस वन, दिस इज द बेस एट दिस पॉइंट. GF. GF is the base, this is the perpendicular, this is your hypotenuse. GC is the hypotenuse in the triangle. ये आपका बेस है, GF is the base. So GFC by GC, GF CF और GF by whatever it is, FC और CF आप कोई भी ले लीजिए. CF और FC whatever it is, FC कर लीजिए या CF कर लीजिए, बात एक ये perpendicular by hypotenuse. FC by GC, FC by
GC और CG कोई भी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ड आगे पीछे लिखने से। तो CF आपको पता है, GC को क्या लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट GC को क्या लिख सकते हो, GO प्लस OC, OG। CO प्लस OG। तो उसको बेसिकली स्प्लिट आउट करके हमने लिख दिया। तो साइन फाई की वैल्यू अब हमें क्या है, अब CF आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF? CF लिख सकते हो यार, मतलब टाउ। रेडियस है ना ये। नहीं, हाँ। तो रेडियस को क्या निकालोगे, निकाल के बताइए, बट यू कैन राइट दैट रेडियस ऑफ द सर्कल। सर वो रेडियस FC होगा। FC रेडियस है, बट इज द बट वैल्यू टाउ ऑफ टाउ वो होता है सर, σ1 - σ3/2 इंटू साइन 12 का। ताहिर, आपको आवाज। शोर है कहीं और से। वो रेडियस होती है ना सर, वो टाउ मैक्स, जो आपने जो टाउ होता है सर, जर्नल σ1 जर्नल - अगर σ। आप मोहर सर्कल की सॉलिड की अगर बात करो, सॉलिड मैकेनिक्स में बट वी सीन अंडर द रूट σ1 माइनस हाँ, σ3 मैं होल स्क्वायर प्लस σ3। टाउ एक्स बाई स्क्वायर। फाइन, दैट वाज द रिलेशन। हाँ। अब और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर CSS क्या होता है, 0। जीरो होता है। इसका मतलब क्या आया, CSS जीरो होने का मतलब रेडियस क्या निकल जाएगी, अंडर द रूट σ1 माइनस σ3/2 होल स्क्वायर, यही आएगा। हम्म। इसका मतलब क्या हम्म। हुआ, तो σ1 माइनस σ3/2 क्या आएगी, रेडियस आएगी। यस और नो, यस सर। यही होगा ना। अदरवाइज हम यस सर। इससे भी सोल्व कर सकते हैं, देखो क्या होगा। ये आपका पास क्या है, ये मुझे इसका अगर डायमीटर निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डायमीटर, σ1 - σ3 होगा सर। σ1 माइनस σ3 होगा। और जी सर। ये रेडियस और रेडियस तो सारी सेम होगी थ्रू आउट द सर्कल, हाँ, बाय 2 हो जाएगा minus सर। 3/2। तो either of the way, by जी the जी Mohr सर। circle or by the previous relation analytically that we seen, you can calculate the radius of circle, which is comes out to be σ1 minus σ3/2। तो σ1 माइनस σ3/2, एफ यहाँ पे ध्यान रखना, ये फेलियर प्लेन के ऊपर बात कर। और नीचे आपके पास क्या है, CO प्लस OG। CO क्या है, CO, CO की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO? ये मेरी अगेन रेडियस है, ये आपके पास क्या है, σ3 है। तो लेट्स सी σ1 प्लस σ3/f/2 प्लस C कोट थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगेन से आपको, σ1 OG की वैल्यू फिर से निकाल, OG CO की वैल्यू σ1 प्लस σ3/f/2। ये देखो जो आंसर दोबारा से, CO की वैल्यू σ1 प्लस σ3/2 तो बाई 2, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये वैल्यू। और ये एंगल आपको पता है, तो ये मेरी क्या होगी, ये हाइट आपको पता है कितनी है, ये C है, ये निकाल सकते हो। कैन यू कैलकुलेट दिस, कैन यू कैलकुलेट दिस बेस वैल्यू इफ यू नो द हाइट एंड एंगल? yes, I can calculate, which comes out to be C cot 5, which comes out to be C cot 5। तो उसको 10 का इन्वर्स करके आप निकाल सकते हो। यस और नो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट σ1 प्लस σ3/2 प्लस ये मुझे चाहिए GO। ये ट्रायंगल है यहाँ पे, ये C की वैल्यू C है, ये फाई है। तो मुझे निकालना है क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालना है। तो कैन यू कैलकुलेट दैट? यस, आई कैन कैलकुलेट, विच कम्स आउट टू बी σ1 प्लस f प्लस σ3f/2 प्लस C कोट ऑफ 5। यस और नो, ये वैल्यू निकल जाएगी। आफ्टर डूइंग सो यू हैव टू अप्लाई इट, σ1 प्लस सिग्मा, सिंप्लीफाई करो दोनों साइड से ले जाके, σ1 f σ3f/2 σ1 प्लस σ1f प्लस σ3f/2 साइन 5। तो इस साइड मल्टी प्लस C कोट साइन 5, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद σ1f माइनस σ3f कॉमन आउट करके σ1f प्लस σ3/f साइन 2 5 बाई प्लस 2C कोस 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 2C कोस 5।
कोट से कोट कैंसिल, सी की वैल्यू 2 कोस फाइव। अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास सी 2 कोस, ये कोट फाइव को वैल्यू लिखना, कोट फाइव को क्या लिख सकते हो, बट यू कैन राइट कोट फाइव cos over sin। कोस ओवर साइन लिखोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c कोस फाइव आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद तो सिग्मा 1f, फिर से आपको यहाँ से कॉमन आउट करोगे, 1 माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइव प्लस 2c कोस फाइव। अब यहाँ से फिर से कॉमन आउट करके इसको सिंप्लीफाई वे में करोगे, अल्टीमेटली 2c कोस फाइव 1 माइनस साइन फाइव। अब अगेन रिलेशन आपके पास a माइनस बी कुछ लगेगा यहाँ पे, फिर से रिलेशन उसके हिसाब से निकलेगा। अगर नहीं आता है तो लेट मी नो, आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, ये रिलेशन अगर नहीं निकलता है कि ये वैल्यू कहाँ से, जस्ट ज्योमेट्रिकल फंक्शन दैट इज यूज्ड। तो कोस फाइव को क्या लिख सकते हो, वैसे कोस हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो को वहाँ से अगर निकालोगे तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर को निकालना है तो अंडर द रूट 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है, नथिंग एल्स। ठीक है, कोस स्क्वायर कोस फाइव को लिखा गया है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव विच इज नथिंग बट कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, अल्टीमेटली दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आगे फर्दर हम आगे जैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये रिलेशन ये है 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45। यहाँ पे वैल्यू निकाली अगेन 45 डिग्री प्लस 5/2, इसको हम लिख, इस रिलेशन को पूरे को इसको लिखा गया है n5, दैट्स इट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू ये रिलेशन है ये वाला, तो इसको लिखा सिग्मा 3f 10 स्क्वायर 45 डिग्री 5/2 प्लस 2c 10 45 डिग्री 5/2, इसको आगे लिखा हुआ है इस रिलेशन को, जस्ट पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आगे लिखी और इसको हमने लिख दिया NQ। तो सिग्मा 3f NQ, सॉरी क्यू नहीं है, सॉरी बारी नेम क्यू निकला, इट्स अ 5 सिग्मा 3f n5 प्लस 2c अंडर द रूट n5, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अंडर द रूट वैल्यू, दैट्स व्हाई द वैल्यू कम्स आउट। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर नहीं निकलती है, जस्ट वे टू रिप्रेजेंट सिंप्लीफिकेशन, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, तो उसी को आगे फर्दर कैलकुलेट करते हुए इस वैल्यू को निकाला। यहाँ पे कोड को पुट किया था, साइन से ये कैंसिल आउट हुआ था, देन वी हैव टू कॉमन दैट नाउ आउट। कोस की वैल्यू यहाँ पे लिखा हमने अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, अगेन सिंप्लीफाई किया, उसके बाद में ये रिलेशन आया और 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव, अगेन ये रिलेशन होता है आपका ज्योमेट्रिकल फंक्शन विच इज कम्स आउट टू बी 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, और इसको हमने लिख दिया 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को n5, और यहाँ पे ये हमने इसको रिलेशन में लिया है, दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फंक्शन निकल के आ गया है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ एट द टाइम ऑफ फेलियर। ये रिलेशन निकल के आता है दोनों के अंदर, यूनिक रिलेशन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। ठीक है, और विद द क्वेश्चन। ठीक है, ये देखना, अगर नहीं पता लगेगा लेट मी नो अगेन, आई विल टेल। बाय द मोहर फेलियर एनवलप अल्फा हमें ऑलरेडी वी सीन दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल। अब ये वैल्यू कैसे निकल के आई है, जो इंटीरियर एंगल था हमारा, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा विच इज नथिंग बट मोहर सर्कल से सीधी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ये लंबी चौड़ी स्टोरी सी देखी थी सारी। बाय द यूजिंग द मोहर सर्कल we can use geometrical function and calculate alpha directly from the Mohr circle, which is nothing but 2 alpha is equal to 90 डिग्री प्लस 5, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। वो कहाँ से निकलता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। 2 अल्फा की जो वैल्यू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स 90 प्लस 5, जो हमारी ज्योमेट्रिक होती है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, जो हमारी 10th में 9th में आपने पढ़ा होगा टिग्नोमेट्री के अंदर, जो एंगल की स्टडी हम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर, विच दीज आर नथिंग बट 90 था ऊपर वाला और 5 उधर वाला था, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 5 और 5 अल्फा इज कम्स आउट टू बी 45 डिग्री प्लस 5/2। और यहाँ पे ये लिख भी दिया है अल्फा एफ सी और इज इक्वल टू एंगल सी एफ जी प्लस
GFC। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो अभी चीज़ सारी हमने इक्वेशन अभी निकाली है उसका कंक्लूडिव पॉइंट और क्या चीज़ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इफ़ C इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? C इज इक्वल टू 0 मतलब इट इज़ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल। कोहेजनलेस नहीं, कोहेजनलेस सॉइल है, कोहेसिव सॉइल नहीं, इट्स कोहेजनलेस सॉइल। C इज इक्वल टू 0 मतलब इट्स कोहेजनलेस सॉइल। और कोहेजनलेस सॉइल कौन सी होती है? इट इज़ सैंडी सॉइल और ग्रेवल्स। और सैंडी सॉइल की बात करूँ मैं पर्टिकुलरली, प्योर फ्रिक्शनल सॉइल, और जो नॉन कोहेसिव सॉइल भी बोलते हैं या कोहेजनलेस सॉइल बोलते हैं, तीनों चीज़ बोल सकते हो। और प्योर फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शनल सबसे ज़्यादा रहेगा, नॉन कोहेसिव भी बोला जा सकता है, कोहेजनलेस सॉइल भी बोला जा सकता है। तो इसका एग्जांपल रहेगा सैंड। तो इस केस के अंदर सी की वैल्यू है हमारी 0, तो उस केस में हमारी सिग्मा 1 है, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर विल कम्स आउट टू बी, जो ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम निकाली अभी पीछे, सिग्मा 3f एन फाइव प्लस 2c अंडर द रूट एन फाइव, तो ये हो जाएगा सारा 0। तो आपके पास बचा क्या? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1f इक्वल टू सिग्मा 3f एन फाइव। तो इन रिलेस सिग्मा 1f बाई सिग्मा 3f विच इज इक्वल टू एन फाइव, और एन फाइव की वैल्यू क्या थी? 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस पाई बाई 2 विच इज नथिंग बट 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव, यहाँ से ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू पुट करें। दिस रिलेशन इज नोन एज ओब्लिक्विटी रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं एंगल रिलेशन ऑफ ओब्लिक्विटी। इट्स वैलिड फॉर ओनली फॉर किस सॉइल के लिए? दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल, नॉन कोहेसिव या कोहेजनलेस सॉइल विच इज योर सैंड। ठीक है, अब वो आपका जो एंगल सी 0 होगा तो ये आपका जो जो रिजल्टेंट बनेगा, जो प्लेन ऑफ फेलियर एनवलप बनेगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो अभी इस केस में हमारा जो इंक्लिनेशन आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम इंक्लिनेशन निकल के आता है एट द टाइम ऑफ एंगल जो बनेगा, जो एंगल आएगा दैट इज अ मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल, और ओब्लिक्विटी एंगल है जो वो मैक्सिमम निकल के आएगा। इसीलिए इस रिलेशन को बोला जाता है ओब्लिक्विटी रिलेशन। ठीक है, जो अभी तक हमने सारी ये चीज़ें देखी थी। तो इस केस के अंदर जो ये हमारा पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ये बेसिकली ये हमारा क्या है? फेलियर प्लेन है, ये हमारा एनवलप है। ये पॉइंट जो हमें बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अगर यहाँ पे ये है टाउ अवेलेबल, का मतलब क्या है अभी दिखाता हूँ मैं। ये हमारी क्या होगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो कि प्रोड्यूस होने वाली है एट पॉइंट डी। जो मैक्सिमम रेडियस होती है सर्कल की वो हमारे को क्या रिप्रेजेंट करती है? विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अवेलेबल। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि प्रोड्यूस होने, जो कि 90 एंगल पे मैक्सिमम हमारी बन रही है इस पॉइंट के ऊपर। 2 अल्फा जो एंगल आएगा देन 90 आएगा, तो अल्फा इक्वल टू 40 बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है, और ये पॉइंट हमारा जो आएगा, ये वर्टिकल जो मिल रहा है ये हमारा टाउ एफ एफ है। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ ओ पॉइंट तक आएगा ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है। ठीक है, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, ये मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये डी डैश है, ये पॉइंट अभी आगे मैंने आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। दैट इज अ क्वेश्चनलेस सॉइल। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। In case of sand, failure takes place on the plane at which resultant stress is most inclined with the normal stress on the same plane at failure. तो जिस पे हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन के साथ देखा था, तो क्या आ रहा था? इन केस ऑफ सैंड फेलियर कब होगा? टेक्स प्लेस ऑन द प्लेन एट विच रिजल्टेंट स्ट्रेस इज मस्ट इंक्लाइंड विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सेम प्लेन एट द फेलियर। इसमें फेलियर प्लेन और रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो एक्सिस बन रहा है वो सेम बन रहा है, और किससे एंगल पे बन रहा है? एफ आई एंगल पे बन रहा है, और जो कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वाला ही है ना हमारा। इसका अगर रिजल्टेंट निकालूं तो ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेस है, ये मेरा टाउ है, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? अंडर द रूट सिग्मा एफ एफ स्क्वायर प्लस टाउ एफ एफ स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द सेम वैल्यू विच वी आर गेटिंग एट द टाइम ऑफ फेलियर एनवलप। ये जो फेलियर लाइन प्लेन बन रहे हैं इसी के साथ ही हमारा बन के निकल। ठीक है, वही मतलब। तो टेन फाई और एंगल टेन बीटा जो हमारा क्या आएगा? एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी विच इज कम्स आउट टू बी शियर स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेस। दिस इज द सेम एज ओब्लिक्विटी रिलेशनशिप दैट वी सी। ठीक है, टाउ एफ एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एफ टेन फाइव। तो ये रिलेशन हमने कहाँ देखा था भाई? वेयर वी सीन दिस रिलेशन?
कूलम्स का रिलेशन क्या था? व्हाट वाज द कूलम्स रिलेशन? टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई. वाज दैट रिलेशन और नॉट? Yes, sir. रिलेशन था. तो सी जीरो हुआ तो आपके पास Yes, sir. CSS की वैल्यू क्या आएगी? CSS कम्स आउट टू बी नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन. फेलियर के प्लेन के ऊपर फेलियर के टाइम 10 फाई इज इक्वल टू योर CSS एट फेलियर प्लेन एट फेलियर टाइम ऑफ फेलियर. फेलियर प्लेन फेलियर एक तरीके से वो बन जाता है कच्चा पापड़ टाइप. तो बार बार वो रिपीट करने से ऐसी चीज़ें बन रही है कि कोई वो. तो एफ इज फेलियर प्लेन एट द टाइम ऑफ फेलियर. ठीक है. एंड हेयर फाई एंड बीटा इज द टर्म्ड एज एंगल. ठीक है. तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आएगा इस केस के अंदर. तो ये हमारा जूम कॉलम्स का इक्वेशन था. दैट इज टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस 10 फाई. तो सी आपका जीरो होगा इस केस में, ये रिलेशन आता है. और इस केस के अंदर हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो प्लेन बनेगा वही हमारा इसके साथ बनेगा. ठीक है. एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. Maximum obliquity also. The Mohr failure hypothesis shows an interesting fact. क्या interesting fact show कर रहा है? जो अभी मैं डी की बात कर रहा था उसको देखते हैं. The maximum shear stress on the plane on the failure plane tau f is not the maximum stress in the element tau max. अगर आप देखोगे इस मोहर सर्कल को, जो कि टाउ मैक्स मेरी वैल्यू आ रही है ना, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है इसके अंदर. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बन रहा है इधर. ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है. तो टाउ मैक्स है इज नॉट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द प्लेन. ठीक है. द मोर फेलियर हाइपोथेसिस शोज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन जो प्रोड्यूस हो रही है फेलियर प्लेन के ऊपर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ एफ is not the maximum shear stress in the element tau max. जो कि मैक्सिमम shear stress नहीं है, जो कि हमारे मोर सर्कल पे भी देख रहे हैं. The maximum shear stress tau max act on a plane inclined at 45 degree to the major principal plane. Its magnitude is, ये हमने देखा था मैक्सिमम shear stress 45 डिग्री पे आता है. क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एफ बाई 2 साइन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 अल्फा. साइन 2 अल्फा की वैल्यू कब आपकी 1 होगी? देन एंगल इज 45 डिग्री. साइन 90 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1. 1. कहने का मतलब एंगल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री. तो जब आपका साइन 2 थीटा मतलब 2 अल्फा 45 को पुट करोगे अल्फा इक्वल टू तो 90, साइन 90 इज 1. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कम्स आउट टू बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, मतलब डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ठीक है. The failure does not take place on this plane because the available shear stress on the plane CD1, available shear stress, this is the CD1. ये मेरा इस प्लेन पे फेलियर नहीं हो रहा है. अवेलेबल shear stress मेरे पास कितनी है? shear stress, this is the shear stress available. अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी है. तो ये मेरा टाउ है, वो अवेलेबल shear stress है. Because the failure does not take place on this plane because the available shear strength of the plane CDI जो कि ऊपर है is greater than the maximum shear stress CD. और ये जो हमारे पास अवेलेबल shear strength कितनी है? यहाँ पे फेलियर नहीं होगा इस प्लेन के ऊपर 45 के ऊपर. अगर आप ये लाइन से ड्रॉ कर रहे हो, हमारी बात क्या थी? हम ये जानते थे ना कि shear strength कब जो फेलियर होगा वो टेक्स प्लेस व्हेन एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो इस पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो फेलियर यहाँ पे होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन. ये कब हो रहा है? हमारे पास इतनी शियर स्ट्रेंथ अवेलेबल है. कहाँ तक? C2D डैश. और ये मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है. हम जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होना या मोबिलाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ है? वी रीच अप टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल. बट हेयर वी कैन सी देयर इज ए सम portion is available which is tau available or shear strength is available to the failure. इसको आगे फिर से और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ फैक्ट है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा. The failure on the plane of maximum shear stress can occur only alpha 45 degree on the phi is equal to 0. अब ये कहने का मतलब क्या? phi 0 होगा
तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा आपका, ये लाइन जो है आपकी पहले इंक्लाइंड आ रही थी, किसी एंगल के ऊपर आ रही थी, तो फाई जीरो कब होगा, इन विच केस फाई विल बी जीरो व्हेन सोइल इज प्योरली नॉन क्ले, कोहेसिव, नॉन कोहेसिव या क्ले सोइल। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, सैंड। सैंड नहीं क्ले होना चाहिए। कोहेसिव सोइल होगी तब होगा ना अल्फा जीरो, तो अल्फा नहीं सर, सॉरी फाइव तो जीरो है ना। फाइव फाइव जीरो कब होगा, व्हेन देयर इज ए नॉन फ्रिक्शनल सोइल यूज। नॉन फ्रिक्शनल सोइल मतलब प्योरली कोहेसिव सोइल, प्योरली कोहेसिव सोइल इज क्ले। कोहेसिव सोइल, नॉन नॉन कोहेसिव, नॉन कोहेसिव के अंदर तो जो आपका shear रेजिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, बट इन द कोहेसिव सोइल ऑल द रेजिस्टेंस जो shear है वो फ्रिक्शन की वजह से नेग्लिजिबल होता है, मतलब फाई एंगल है वो जीरो बनेगा। तो मोहर का एनवलप होगा वो, ये सी तो आपको मिल रहा है, बट ये जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई जीरो होने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, कोहेसिव सोइल, प्योर कोहेसिव सोइल, प्योर कोहेसिव सोइल इज ओनली द क्ले सोइल, लाइक इन दैट केस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब फाई एंगल रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में मोहर का जो एंगल बन रहा था पिछले केस में हमने देखा था जहाँ सी जीरो था, सी जीरो होने का मतलब नॉन कोहेसिव सोइल, तो सी करने का मतलब ये हमारा इंटरसेक्ट था वाई के अंदर, सी क्या था, कोहेजन इंटरसेक्ट था ऑन द एक्सिस ऑफ अलोंग वाई ना, यही था ना, मैंने सबसे पहले यही बताया था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे ये रहा, इट इज टू बी नोटेड सी एंड फाई आर द इनर प्रॉपर्टी, इससे पहले था। Let me show again where it is. हाँ यहाँ होगा कोलम्बस बच्चे म्यूट कर लो अगर कोई बात आपस में हंसने वाली हो रही है तो, बिकॉज माइट बी एनी अदर टीचर इज लाइव विद अस, सो ये रहा, सी रिप्रेजेंट्स वाई इंटरसेप्ट एंड फाई रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो वाई सी था हमारा। गुड्डू कुमार बार बार कहाँ चले जा रहे हैं, तो ये हमारा सी इस केस के अंदर आएगा, बिकॉज प्योरली कोहेसिव सॉइल इज द क्ले इज द प्योरली कोहेसिव, फ्रिक्शन फाई जो shear रेजिस्टेंस है दैट बिकम जीरो। तो ये आपका मोहर का जो एनवलप बनेगा इन दैट केस टाउ मैक्स एफ एफ है, यहाँ पे जो टाउ है वो मैक्सिमम निकल के आएगा इस केस में, इन लाइक क्ले। Hence, for sand and silt, shear strength is always less than the maximum shear stress, but for clay it is equal to the maximum. और sand और silt के केस के अंदर जो shear strength है वो always less than the maximum shear stress, जो कि ऊपर का मैंने बताया था available shear stress है वो ज़्यादा होती है in the shear strength case of sand and silt, but clay के अंदर जो maximum shear stress होगी जैसा कि इस केस में हमने देखा वो equal to maximum shear strength ही होगा। This is all about for the today's lecture. आगे हम इसके टेस्ट परफॉर्म करेंगे स्टिल की अगली क्लास में, माइट बी वी विल कवर्ड इट। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी कुछ नहीं है, काफ़ी है क्वेश्चन इससे रिलेटेड विद द। पहली बात तो टेस्ट को समझना इटसेल्फ अपने आप में एक टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है टेस्ट परफॉर्म करना और टेस्ट को समझना, हाउ टू परफॉर्म इट। इक्विपमेंट के अंदर सोइल को सैंपल को रखना, सैंपल प्रिपेयर करना, उसके बाद में उस पर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो सारी पहले तो हम देखेंगे उसके वीडियोस, how to perform it, then we will see conceptual or theoretical part, how we can use the these data of test into the analytical or theoretical concept and try to analyze the value of your shear strength of the soil। तो shear strength की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे सोइल के अंदर by taking the performing the test over the soil। अगर आप यहाँ फिजिकल मोड में अवेलेबल होते डेफिनेटली वी विल गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट ऑन द shear strength basis
तो उनके बेसिस के ऊपर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने थे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का यूज़ करते हुए हमने शेयर स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग मोहर और कुलम थ्योरीज। तो उसके बाद हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, आज मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा आपको। जैसा कि लास्ट टाइम की तरह आप लोग बोदर नहीं कर रहे हो कि हमें ये शेयर किया जाए। लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज़ हुआ इवन, बट नो बडी इवन आज कि ये शेयर करी जाए हमारे साथ, बट आज मैं कर दूंगा। आपकी तरफ से नहीं है तो भी कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड। और कल आपका एक एक्सपर्ट टॉक हो रहा है रिलेटेड टू माइट बी, उपेंद्र सर ने शेयर भी कर दिया ग्रुप के अंदर। यस हाँ ठीक है, तो 10 o'clock दैट लेक्चर। सर। सेकंड एमएससी का कुछ पता कब होंगे? अभी नहीं बच्चे, आएगा तो आपको बता देंगे। ओके सर। तो ये एक्सपर्ट टॉक होगा लेटेस्ट एडवांसेस इन सीमेंट बेस्ड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। कुछ नई एडवांसमेंट जो आई है सीमेंट के अंदर, मतलब कुछ मटेरियल और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो क्या है उससे रिलेटेड भी आपको, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मटेरियल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है दैट दे यू शुड नो कि कुछ चीज़ें आपको, जैसे आप पुराने वे से यूज़ करते आ रहे हो या कुछ उनसे एडवांसमेंट आई है, तो दैट मे हेल्प फॉर टूडेज कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उससे रिलेटेड जो कि मिस्टर विकास मल्होत्रा जी हैं, जोनल हेड ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी जेके सीमेंट लिमिटेड, तो वो मोस्ट प्रोबली दे विल डिस्कस अबाउट 1.5 आवर मोर मैक्सिमम। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑन द टाइम। और लिंक है दैट विल गोइंग टू बी शेयर बाय टुडे और बाय टुमारो। ठीक है, और कोई चीज़ अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल द स्टूडेंट्स। ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहे मेरे को तो कहीं जाना था। 10 बजे स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबली विल एंड अप विद मैक्सिमम 12। मैक्सिमम की बात है, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे होगा तो दैट वी कैन मैनेज। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा मोस्ट प्रोबली। इट्स गोइंग टू बी अराउंड 1.5 आवर मोस्ट प्रोबली। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं हो तो भी बहुत अच्छी बात है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बाहर ज़्यादा मत घूमिए, और जिसको वैक्सीनेशन लग रही है वो लगवाइए। कोई डेंजरस नहीं है उसमें। कुछ चीज़ें काफ़ी हाई की चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने भी लगवा लिया है और उपेंद्र सर ने तो दोनों ही लगवा लिए, तो देयर इज़ नो चेंज इन द बॉडी। बिट इफेक्ट तो रहते ही रहते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीनेशन ले लो आप, थोड़ा बहुत तो आपकी बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन रहेगा, लाइक थोड़ा सा बॉडी पेन समथिंग, अदरवाइज कुछ नहीं। मतलब विद इन डे आप लोग ठीक हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ हो। तो ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी हो वैक्सीनेट करीजिए अपने आप को, एंड बी सेफ टू द कोविड। सर सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो एक्चुअली ना सुनने को आया कि जो मनप्रीत मैम उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जी, तो सर वो जो बाकी का हमारा सिलेबस है उसके बारे में पूछना था। संदीप सर विल कंटिन्यू योर लेक्चर रिलेटेड टू दैट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। ओके